Okay. So, Assalamu alaikum. This is Madiha Sarosh. A little introduction from my end, and then I shall come to you. Meanwhile, if other trainees join in, then we'll welcome them as well. So, I've been in the profession of teaching since past 2 decades. I think more than 20 years now. I have done my master's in microbiology, and then later I also did my master's in literature in English. Biology is my passion. I've taught bio for 2 decades all along. Um, have been trained by Cambridge, have been given trainings to many of the teachers, have coordinated biology, sciences altogether, Cambridge, IGCSE, and O levels in various schools. Um, have pursued After having pursued my degree in literature and English, I did continue with literature as well, teaching language as well. But yes, bio is my main focus. I do teach biology across the globe, not just Cambridge. I teach OCR, I teach AQA, I've taught IB as well, and of course Cambridge and Edexcel Pearson now emerging. So yeah, quite an extensive experience. Here I am, associated with Waste Global since very long. I think from the time of COVID, when Waste actually was formed, I was one of those teachers who had joined in for the first time. And since then, rightly said, this is Waste Elevate. The main purpose of Waste, let me be very honest here, is not to serve as a commercial entity that, promote itself and make or mint money like institutes probably do. We literally look forward to train the teachers, and we literally look forward to elevate our students as well. And I was just thinking in the morning as to what I'm going to speak on, and the term ways elevate, when it said elevate, it hit me hard, and it rightly touched my heart, because we literally are elevating people, be it students who are appearing as candidates of Cambridge, or the trainers, you all, I mean, the trainees who want to get into teaching Cambridge. So that was it, a little about myself, and then what we are looking for, or what we are here to serve. Coming to you all, I would again request if you all can see the slides. Moz, can you see the slide? No, Moz, you ma'am, there? I cannot. You No, ma'am, cannot. I Let cannot. me, yeah. Okay, as soon as you do, please do let me know, okay? Okay. Do you see that now? Yes, Yes, I can ma'am. see. Great, great. So before we start, I would want you to have a little intro about yourself. Yes, Moz, we begin with you. I am teaching in Hello. a school from 3 years in a private school, Mm-hmm. Mm-hmm. and I am Okay. trying to teach the O level students. So I joined this Mm-hmm. session. Lovely, very good. And Moaz, are you more comfortable being bilingual? हम उर्दू और इंग्लिश मिक्स करके बात करें तो ज्यादा मजा आएगा. क्या कहते हैं जी आप? मैडम, आप चाह जी रहे हैं ऐसा ठीक है. bilingual रहना? ठीक है. I then move on to Miss Rabia. My name is Rabia Amin. Actually, I also have done honors in microbiology, Oh, and lovely. I was happy when you were saying to me Yeah. microbiology. I have Great, done great. from KU, Okay, Karachi great. University. Yeah. Yes, and actually, the my profession related with teaching is that before my marriage, I was teaching in a school, and after a Mm-hmm. gap, I also started again. Now Mm-hmm. I have been teaching since 2002. You can say that, Oh, and lovely. Great. yes,
and start obviously after a long gap, after 2 decades or Yeah. 15 years, because I was busy in my children, my marriage. So I Quite again, when my understandable. mashallah, my student, they were as old as that they were started to go in school. So I again start teaching, because teaching is my profession. I thought that I can do much something other, but when I started that thing, I thought कि नहीं भाई, ये मेरे बस का काम नहीं है, teaching ही मेरा काम है. मुझे लगता है हम माएँ जो है ना वो born teachers होती हैं. We are born to teach, है ना? या तो मतलब मुझे लगा कि मैं कहीं भी कंफर्टेबल नहीं हूँ टीचिंग में. मैंने एक्चुअली ड्यूरिंग कोविड जो है वो Amazon पे काम स्टार्ट किया, क्योंकि ऑब्वियसली आप कुछ करना चाहते हैं फॉर योर सेल्फ, नॉट फॉर द अर्निंग पर्पज. तो अब True. वो नहीं, मुझे मजा नहीं आया. नहीं, मैंने कहा नहीं, मेरा प्रोफेशन टीचिंग है, उसमें मुझे बहुत मजा आता है पढ़ने में. एक्चुअली जो मेरा है, हाँ, लाइफ लॉन्ग आप लर्निंग हो जाती है ना. आप लर्न एग्जैक्टली करते रहते हो. एवरी डे और इज अ लर्निंग डे. एग्जैक्टली और मुझे जब भी मेरे अंदर जो चीज है, मुझे फील होती है कि अगर मैं कोई चीज सीखती हूँ ना, तो आई रियली इंजॉय इट. कोई भी या मुझे नई चीज हाँ, पता चलती है आपको फ्रेश राइट नाउ. फीलिंग रहती है ना. हाँ, आप एग्जैक्टली और स्टेगनेंट आज नहीं होते हो. और लगता है कि आज आपका दिन है कि आपने कुछ सीखा है. हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है. अच्छा, ये वाली जो नाउ आई एम ट्रेनिंग है ना. डूइंग हाँ Right हाँ. now, I am doing teaching in the Cambridge school also, but I am ओ taking लवली. the primary classes. My field ठीक is है. obviously I have taken before my marriage the senior classes till metric system से मैंने पढ़ा है, वही classes लिए. ठीक है. But ठीक now है. I am teaching in Cambridge classes, not senior. I am taking primary classes. And you अब want आपको to पता है elevate yourself, right? एग्जैक्टली और Good. मुझे इस बारे में कोई नो हाउ नहीं है. मैट्रिक आई कैन टेक इट, बट मुझे इसके लिए अपने आप को थोड़ा सा क्या कहते हैं वो तैयार करना था, मेकअप हाँ. करना था. दैट्स व्हाई So आई Alhamdulillah, this is the very right platform. क्यों है वो शायद अभी नहीं, एंड ऑफ द सेशन तक आपको पता लग जाएगा. ठीक है. अच्छा जनाब, हम स्टार्ट करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्लाह ताला हिम्मत दे कि मैं अपने पर्पस में कामयाब रहूं और आप लोग आज डेमो सेशन में भी यहाँ से कुछ सीख के जाएं. देखिए, मेन पर्पस जो इस कोर्स का है ना, वो हमें अंडरस्टैंड करना है कैम्ब्रिज को, राइट? नाउ बिफोर इवन अंडरस्टैंडिंग biology in Cambridge, you need to know what Cambridge is all about. ऐसा ही है ना. कैम्ब्रिज को अच्छा, मुझे है ना, आप लोग के चेहरे तो नजर नहीं आ रहे, सो आपकी तरफ से यस, एंड आई एम मदीहा, सो कॉल मी मदीहा स्ट्रेट. ठीक है. आप लोगों की तरफ से हाँ ना, बिल्कुल सही, समझ नहीं आया, समझ आ गया, ये सवाल जवाब समझे. चाय और कॉफी पे हम बैठे हुए हैं और हम थोड़ा सा कैम्ब्रिज को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं. ठीक है. मॉज, आर यू देयर? Maz, do I have you here? Rabia, can you hear me? यस, आई वांट टू आस्क कि मैं बीच में आपको यस नो और कर सकती हूँ, इसी वजह से मैंने कहा मैं पूछूं तो कि चाह आप रही हूँ पहले. कि आप मुझे थ्रू आउट यस नो करते रहे ताकि मुझे ओके पता लगे ओके. कि मैं सिर्फ अपने आप से बात नहीं कर रही हूँ. नहीं नहीं नहीं, Maz, are आई you कैन. there? Maz, चले हम स्टार्ट करते हैं. देखिए, कैम्ब्रिज की बॉडी जो है वो यूके की बॉडी है, राइट? कैम्ब्रिज का जो करिकुलम है वो बहुत पुराना है, एंड सो काफ़ी ज़्यादा इसकी रूट्स जो है ना अक्रॉस द ग्लोब स्ट्रेंथन हो चुकी हैं, डीप हो चुकी हैं. यू नो, एवरी कंट्री हैज़ दिस कोर्स बीइंग ऑफर्ड एक्सेप्ट few exception. Of course, American curriculum है, Australian curriculum है, हम उनकी बात नहीं करें, but majority of the countries have opted for Cambridge, right? So it wouldn't be wrong to say कि दुनिया में ये फैला हुआ है, right? और इसीलिए पाकिस्तान में भी फैला हुआ है, right? आपका बच्चा चाहे यूके में पढ़ा है, पाकिस्तान में पढ़ा है, इंडिया में पढ़ रहा है, बाहर कहीं पढ़ रहा है, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में पढ़ रहा है, कैम्ब्रिज उसने पढ़ा हुआ है, तो वो globally recognized है. Do we have a message here? Maz, आपको मेरी आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अली. हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम. मैडम वालेकुम अस्सलाम. हाउ आर यू मैडम? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए. जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र. So we've just started a little while back. Is it okay if you just introduce yourself?
जी मोहम्मद Madam, अली। uh, I joined biology class, but my purpose class. I think so. I should leave this. चले हम पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्लाइड नजर आ रही है? प्लीज इफ यू कैन लेट मी नो। Yes, रबिया, we can see. Yes, we can see it. you see the slides, right? So कैम्ब्रिज हम इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसकी रूट्स डीपन हुई हैं Sorry, अक्रॉस द ma'am. ग्लोब। अभी आपकी स्क्रीन आ रही है. अब मेरी स्क्रीन आ रही है। लेट मी जस्ट शेयर द स्लाइड्स अगेन, जस्ट ए मिनट। जी जनाब, ठीक है। Okay, ma'am. It says that more than 2,220 universities and in 90 countries में Cambridge पढ़ा और पढ़ाया जाता है, right? So you understand why we are so much into Cambridge now. Moving on, Cambridge का student की जब हम बात करते हैं, now these are the core values of Cambridge, be it any subject that you teach. I mean, being a Cambridge teacher, you need to know what Cambridge wants its student to learn. So they say कि बच्चा जब Cambridge से पढ़ के निकलता है तो he should be confident, responsible, reflective, innovative and engaged. These core values should be on the tip of your finger. ठीक है, इसको हम मजीद डिस्कस करेंगे, नॉट इन डेमो बट इंशाल्लाह व्हेन यू आर गोइंग टू जॉइन द कोर्स वी विल सी हाउ यू कैन मेक योर स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंट enough and responsible to be able to reflect on his own strategies of teaching and how the child or student or even us as teachers can be more innovative. जैसे इनोवेटिव का मतलब है दुनिया आगे बढ़ रही है, हम जैसे पढ़ते आए हैं या हम जिस तरह अपने सिस्टम के अंदर हमारी लोकल बॉडी का जो सिस्टम है उसमें हम पढ़ा रहे हैं, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, वी आर टीचिंग थ्योरीज, राइट? डेफिनेशन क्या हो गई, वो किस तरह होता है, ये काम क्या होता है, बस यहाँ तक हम महदूद हैं। कैम्ब्रिज जब आपको बताता है तो वो आपको फ्यूचर रेडी कर रहा होता है, आपको बता रहा होता है कि आगे आपको चीज़ें क्रिएट किस तरह करनी है इंस्टेड ऑफ जस्ट लर्निंग एंड अप्लाइंग योर लर्निंग, ठीक है। सो यू नीड टू प्ले विथ व्हाट यू हैव लर्न टू क्रिएट समथिंग न्यू, क्रिएट समथिंग इनोवेटिव, राइट? एंड एक कैम्ब्रिज का बच्चा जब यहाँ से निकलता है तो वो एक थिंकर बन के निकलता है, राइट? which is why Cambridge is very very popular. You would see Cambridge का बच्चा जो है वो stand out करता है compared to हमारी local bodies का बच्चा जो है, right? Again, I'm going to just move on quickly. These are all the pathways starting from early year, but Pakistan के अंदर जब हम आते हैं तो हम कैम्ब्रिज की बुक्स तो पढ़ा देते हैं, बट टेस्टिंग जो हमारी स्टार्ट होती है वो कैम्ब्रिज से, वो बच्चा हमारा जब 14 प्लस हो जाता है, दैट इज ओ लेवल्स, IGCSE या तो फिर आगे जाके कॉलेज में ए लेवल्स, हमारे पास ये ज़्यादा कॉमन है। हम बुक्स तो पढ़ा रहे होते हैं यहाँ पे शुरू के ईयर्स में, बट वो सिर्फ बुक्स तक ही पढ़ाते हैं, हम टेस्टिंग कैम्ब्रिज से नहीं लेते, रीजन बीइंग कि वो बहुत महंगा हो जाता है, एंड नॉट ऑल स्कूल्स देन दे ऑप्ट फॉर इट कि बच्चा फीस भी दे रहा है और फिर कैम्ब्रिज की फीस भी दे रहा है, तो हम उसको इंटरनली टेस्ट करते हैं, आप जैसे टेस्ट पेपर बनाते हैं, फाइनल पेपर्स एंड ऑल। बट उसके बाद जो है जब वो 10th में जाता है या 11th में जाता है तब जाके वो पेपर्स देना शुरू करता है, राइट? सो वी डील विद 14 प्लस का स्टूडेंट जब हम ओ लेवल्स और IGCSE की बात करते हैं, एंड ऑफ कोर्स फिर उसके बाद तो ए लेवल्स स्टार्ट हो जाता है। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. So this is a little about Cambridge. अब हम मूव करते हैं जनाब कि कैम्ब्रिज जो है वो हमारे लिए क्या कर रहा है, दैट इज बायोलॉजी के अंदर क्या कर रहा है, राइट? सो आई एम गोइंग टू शेयर सम more pages with you. Just a minute. Okay. Any questions so far? No, ma'am. Okay. We have Sir Moaz. Who's the other one? Muhammad Ali, right? Okay. This sharing is so difficult for me. I don't know. Yeah, just a minute. Okay, fair enough. See, Cambridge
कैम्ब्रिज की जब आप बात करते हो ना और बायो की बात करते हो, तो कैम्ब्रिज के अंदर दो स्ट्रीम्स आती हैं, आपने सुना होगा, ओ लेवल्स आता है और IGCSE आता है, राइट? अब ये दोनों ही बहनें हैं, ठीक है? एक बहन ओ लेवल है, एक IGCSE है। ओ लेवल्स जो है वो अभी तकरीबन तकरीबन ऑब्सोलीट हो रहा है। देयर आर 4 कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब को अभी भी फॉलो करती हैं, एंड हम बेचारे क्योंकि लेट बैक हमारा थोड़ा सा एटीट्यूड होता है, हम भी ओ लेवल्स को लेके चल रहे हैं। हाउएवर देयर आर मेनी स्कूल्स ऑप्टेड फॉर 0610 नाउ। काफी सारा हमारा ये कर रहा है आपका IGCSE। इनफैक्ट 2020 के अंदर इनका प्लान ये था कैम्ब्रिज का, आई अटेंडेड अ वर्कशॉप ईयर बिफोर दैट, दे सेड 2020 तक हम IGCSE एंड ओ लेवल्स का गैप जो है वो ब्रिज कर देंगे, ठीक है? दैट इज तकरीबन स्ट्रीमलाइन पे आ जाएंगे, विच इज वाई कंटेंट हमारा मोर और लेस सिमिलर होता है। पेपर पैटर्न में जाके हम थोड़ा सा हमारा डिफरेंट हो जाता है। फाइन। कैम्ब्रिज अपने सिलेबस को रिवाइज करता है आफ्टर एवरी 3 ईयर, विच इज डू सी यहाँ पे ये लास्ट 3 आ रहा है, यानी ये वाला सिलेबस जो है वो एप्लीकेबल है 2026, 27, 28 में, ठीक है जनाब? IGCSE का सिलेबस ये हो गया। IGCSE का कोड होता है 0610। केम का हर सब्जेक्ट का एक अपना कोड होता है। एज अ बायो टीचर यू मस्ट नो कि IGCSE अगर कैम्ब्रिज करा रहा है तो वो कौन सा कोड है, दैट इज 060। और वो जनाब करा रहा है, एंड देयर आई गो अगेन, ये रहा, मैं आपको दूसरा दे देती हूँ जनाब। अगर तो वो ओ लेवल्स करा रहा है तो उसका कोड डिफरेंट होगा। This is the O level course. Do you see the course outline, syllabus outline, the syllabus on the Yes, screen? ma'am. Yes. Yeah. Levels का जो है 590। Now you can see ये दोनों जो हैं ये कैम्ब्रिज के हैं, बट ये वाला आपका ओ लेवल्स का है और दूसरा जो है IGCSE का है। आपका स्कूल या तो ओ लेवल ऑप्ट करेगा या IGCSE ऑप्ट करेगा, रिमेंबर दैट, ठीक है? फर्क क्या है? आई मीन एक ही पेरेंट बॉडी है, दैट इज कैम्ब्रिज, और वो 2 स्ट्रीम लेके चल रहा है। देखिए IGCSE जो है ना वो आपके स्टूडेंट्स को मोर देन ऑलमोस्ट 70 सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स दे रहा है, ठीक है? ओ लेवल्स में 40 समथिंग आपके सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है? अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है IGCSE के अंदर हमारी लोकल बॉडी में क्या होता है, आई एम श्योर यू नो, हम कहते हैं कि जनाब कॉमर्स फील्ड उठा ली, या यू नो मेडिकल फील्ड उठा ली, इंजीनियरिंग फील्ड उठा ली। कैम्ब्रिज कहता है कि यू नीड टू हैव द फ्लेवर ऑफ साइंस, यू नीड टू हैव द फ्लेवर ऑफ, आप जिसको बिजनेस कह लेते हो, या तो फिर आपका आर्ट्स हो गया, यू नो सोशल साइंस इज अनदर फील्ड। और अगर IGCSE के अंदर, नॉट इन ओ लेवल्स, IGCSE के अंदर आपने अगर हर एक सब्जेक्ट का टच उठा लिया, then you can rightly be awarded a certificate which is known as ICE certificate. ICE, that stands for International Certificate of Education. अभी रिसेंटली माई डॉटर हैज़ हैड दैट सर्टिफिकेट, क्योंकि उसकी कोशिश भी यही थी कि वो हर फील्ड ऑफ एजुकेशन का जो वो सब्जेक्ट उठाए ताकि वह ग्लोबली ऑल राउंडर एजुकेशन उसके पास हो। Am I clear in that? Yes, ma'am. Any questions? So far कोई जहन में सवालात आ रहे हैं आप लोगों के? Ma'am, I have one question. हाँ जी। My question is that that they have only if we are going to study about that Cambridge O level or IGCSE, so it means that they have only 2 codes, not more than that, For or bio, not more than for for bio biology only. हाँ जी। Okay, फिर okay, उसके बाद okay, okay. वेरिएंट्स होते हैं। होता क्या है, जाहिर है अब आपको पता है टाइमिंग्स हर कंट्री का डिफरेंट होता है ना? लेट्स सपोज आपके पास 100 कंट्रीज हैं जो कि कैम्ब्रिज IGCSE बायोलॉजी का पेपर ले रही है, ठीक है? और टाइमिंग्स अलग अलग हैं, तो फिर वेरिएंट्स होते हैं। वो अपना एक पेपर बना के उससे टेस्ट नहीं कर रहा पूरी दुनिया को, वो वेरिएंट्स लेता है, ठीक है? फिर पेपर्स जो है इसके साल में 2 बार होते हैं। वंस यू हैव इट इन मई जून सीरीज में होता है, अप्रैल एंड से स्टार्ट हो जाते हैं पेपर होना,
और मई जून तक वो कंटिन्यू रहते हैं। दूसरा अक्टूबर नवंबर सीरीज में भी होते हैं, Means it ठीक है। depends on the अच्छा, different वेरिएंट्स countries. डिफरेंट होते हैं डिपेंडिंग ऑन कंट्रीज। हमारा जो आता है वो फिर हम डेफिनेटली यस, राइट, हमारा वेरिएंट 2 है, ठीक है, हम वेरिएंट 2 हम दे रहे होते हैं, वेरिएंट 1 भी होता है। सो यस, कंट्री टू कंट्री पेपर जो है वो फिर चेंज होता जाता है, वरना तो आपको पता है एक दिन कहीं सुबह हो रही होती है, दूसरे दिन 2 घंटे बाद सुबह हो रही होती है, पेपर सेम आ जाएगा। डू यू गेट इट? तो Okay, वेरिएंट्स fine. I डिफरेंट got होते it. हैं। खैर आजकल तो केम्ब्रिज काफी है ना, और आप लोगों ने सुना होगा खैर आजकल जो है केम्ब्रिज का नया पेपर लीकिंग वाला स्टोरीज भी Yes, चल रही हैं, yes, I बट heard about it. होपफुली दैट विल बी रिजॉल्व। हाँ, या काफी काफी आजकल उसके बारे में बातें हो रही हैं, बट दैट्स नॉट आवर कंसर्न। हमें तो केम्ब्रिज समझना है और हम उसको समझ रहे हैं। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम एनीवन एल्स? अब केम्ब्रिज जब आप पढ़ रहे हो तो उसके अंदर इट्स नॉट अबाउट द कंटेंट। देखें, जब आप एक टीचर हो तो इसका मतलब आपके पास कंटेंट नॉलेज है, ठीक है। तो फिर केम्ब्रिज में क्या फर्क है? जब केम्ब्रिज की टीचर एक सामने खड़ी होती है अपनी स्टूडेंट बॉडी के लिए, तो उसे कंटेंट नॉलेज की सिर्फ जरूरत नहीं होती, उसको टेक्निकलिटी की जरूरत होती है, राइट। टेक्निकलिटीज के अंदर क्या क्या आ जाता है? आपकी कंप्लीट सिलेबस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपके पास। आपको पता होना चाहिए कि आपके जो असेसमेंट है यानी पेपर्स जो होते हैं वो किस तरह से होते हैं, आपकी कंट्री में कौन सा वेरिएंट यूज होता है, आप पेपर्स कौन सा करवा रहे हो, ठीक है। आपको बायो की बात करते हैं, ऑल्दो हम जो है पाकिस्तान के अंदर प्रैक्टिकल्स नहीं कराते, जिस तरह मेट्रिक सिस्टम में प्रैक्टिकल्स होते हैं ना, हमारे पास केम्ब्रिज के जो पेपर्स होते हैं प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसे हम कहते हैं एटीपी, दैट इज ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल, दैट इज प्रैक्टिकल का नेमुल बदल। हम पेपर पे उनको प्रैक्टिकल्स दिखाते हैं और बच्चों से उसके हिसाब से सवाल करते हैं, ठीक है, करेक्ट। Okay. अच्छा, इस तरह के पेपर्स के अंदर आपकी डेफिनेटली मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट भी आती है, दैट इज बायो के अंदर थोड़ा बहुत आपको मैथ आना चाहिए, सरफेस एरिया काउंट करना, परसेंटेजेस काउंट करना, या डाटा एनालिसिस, आपका फ्रीक्वेंसी काउंट कर देना, मीन निकाल देना। लैब के अंदर आपको बच्चों को एटीपी प्रिपेयर कराने के लिए यू हैव टू गिव देम द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज प्रैक्टिकल्स। आपको अपने लैब में प्रैक्टिकल्स कराने होंगे, डेमोन्स्ट्रेट कराने होंगे, डेफिनेटली नॉट ऑल प्रैक्टिकल्स कैन बी परफॉर्म्ड बाय स्टूडेंट्स, और कुछ प्रैक्टिकल्स बच्चा खुद करता है। सो यू हैव टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैब एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ठीक है। Okay. इज दैट क्लियर Yes, एवरीवन? yes, ma'am. एनीवन एल्स, एनी क्वेश्चन? No, देखें, ma'am. जो मैं बात कर रही थी ना आपको कि केम्ब्रिज का लर्नर, ये देखें, ये आपको हर सिलेबस में मिलेगा, ये वही एट्रीब्यूट्स है, इजंट इट रबिया? Confident, Yes, ma'am. responsible, reflective, innovative and engaged. You must keep this in mind all time long. और जब कभी आपको किसी केम्ब्रिज स्कूल में बुलाते हैं और आपसे लेट्स सपोज इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन करते हैं, तो आप अगर ये सारे एट्रीब्यूट्स लेंगे तो आपका दे वुड नो कि हाँ भाई ये इसको केम्ब्रिज का एम एंड ऑब्जेक्टिव पता है, ठीक है। Okay, ma'am. Cambridge is fully equipped with all the material that the teachers are willing to learn from. Okay, आपको क्या क्या देता है? वो सिलेबस देता है। व्हाट इज सिलेबस? ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है, ये सिलेबस, ये क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, ये सब इसमें होगा। स्कीम ऑफ वर्क, ये जो प्लानिंग हम करते हैं ना, ये किस तरह से करनी है, कितना आवर्स स्पेंड करना है, आइडियली किस तरह से पढ़ाना है, एंड इवन आपकी रिसोर्स मटेरियल की वेबसाइट्स हो गई या कुछ हो गई, ये सब आपको देगा। बिफोर एवरी एग्जाम आपको एक स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर भी इशू होता है। What is a specimen question paper? The question paper that students do not get for assessment, but it is kind of a dummy paper. ठीक है, बच्चे उससे नेक्स्ट ईयर बहुत सारे स्पेसिमेन पेपर्स होते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। वी यूज दीज पेपर्स इवन फॉर मेकिंग आवर इंटरनल एग्जाम्स वगैरह बनाने के लिए। टीचर्स गाइड्स आर अवेलेबल, राइट। उसके Okay. अलावा यू हैव एंडोर्स्ड रिसोर्सेज। एंडोर्स्ड रिसोर्सेज क्या होती हैं? देखिए, कैम्ब्रिज ने दे दिया सिलेबस, ये रहा सिलेबस, ये देख रहे हैं, ये चैप्टर्स हैं,
करेक्ट? सेल से लेकर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म तक. बट ये आपको कैसे पढ़ाना है या कितना पढ़ाना है, ये आपको कंटेंट में दिया हुआ है. डू यू सी? क्लासिफिकेशन टॉपिक में बस यही पढ़ाना है, फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म में बट यही पढ़ाना है. कहाँ से पढ़ाना है? नॉट एवरी टॉम डिक एंड हैरी. आप कोई सी भी बुक लेकर ना पढ़ा दें. कैम्ब्रिज कहता है कि जनाब ये कुछ सर्टेन बुक्स हैं जो मैंने आपको रेकमेंड कर दी हैं, इसी में से आप उठ के बनाओगे. कौन कौन सी बुक्स हैं? मैरी जोन्स की आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह उनसे भी मेरी मुलाकात हुई भी है. मैरी जोन्स की बुक जो एंडोर्स्ड है. कभी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अगर आप लोग कंटिन्यू करोगे तो आई एम गोइंग टू शेयर माय पिक्चर विद हर. देन वी हैव आइन बर्टन, उनके साथ भी तस्वीर है मेरे पास. इस तरह एक नहीं बहुत सारे. रॉन पिकरिंग हमारे पास आए थे पाकिस्तान में, उनके साथ भी मेरी मुलाकात हुई भी है. ऑल दीज पीपल इनमें मास्टर एग्जामिनर भी हो जाते हैं, जो पेपर्स बनाते हैं, या ये जो बुक्स हैं जितनी ये जो एंडोर्स्ड बुक्स हैं ना, हम उन्हीं के थ्रू पढ़ा रहे होते हैं. ठीक है? एंडोर्स आप कैम्ब्रिज को पढ़ाने के लिए जो है, इट इज़ नॉट सजेस्टेड कि आप कंटेंट जो है वो मैट्रिक सिस्टम वाला उठाओ. डेफिनेटली हार्ट है, वो मैट्रिक सिस्टम में भी पढ़ाते हैं, कैम्ब्रिज में भी पढ़ाते हैं. बट वो किस तरह पढ़ाना है, वो जो कैम्ब्रिज की बुक में लिमिटेड डिटेल्स हैं, आप उनको टेकअप करोगे. इज दैट क्लियर, रबिया? Yes, ma'am. Yes. Yeah. Okay. Where are other two gentlemen? Why are they quiet? ये तो फीमेल डोमिनेटिंग सोसाइटी बनी हुई है अभी हमारी क्लास. जी जनाब. Do we have more? Let me see. ठीक है. Are we there? Sir Moz, are you there? Okay. Yes, ma'am. Fine. Let's. Oh, you are there. Sir Moz, आप कहाँ हैं? यहाँ ही हूँ मैम. तो आप सुनाई नहीं दे रहे मुझे. नजर तो छोड़ दें, आपको तो सुनाई तो दे मुझे. एंड क्या समझ आया अब तक सर मॉज? IGSC का सिलेबस वगैरह के बारे में पता चला है, क्या होता है उनका कॉन्ट्रैक्ट वगैरह. ठीक है. और कोई सवाल आपके जहन में है तो? नहीं मैम, कुछ देर के लिए बाहर गया था. तो ये पूछना कि टीचिंग ये O लेवल वगैरह पढ़ाने के लिए कोई सर्टिफिकेट भी चाहिए क्या? नहीं, देखिए सर्टिफिकेट क्या है आपका? आपकी नॉलेज ही आपका सर्टिफिकेट है. आप सर्टिफिकेट पढ़ाकर आप बगैर किसी चीज के नॉलेज के आप चले जाएंगे, आपको सिलेबस का पता नहीं होगा, पेपर पैटर्न का पता नहीं होगा, आपको नहीं लेंगे. मेरी एंट्री O लेवल्स में जब हुई थी, मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं था. आई वॉज अ ग्रेड 5 टीचर. बट आपका एक्सपीरियंस, आपका कॉन्फिडेंस आपको O लेवल स्ट्रीम की तरफ लेके जाता है. और आपका O लेवल के अंदर एंटर करना जो है वो किसी सर्टिफिकेट पे डिपेंडेंट नहीं है, वो आपकी नॉलेज, आपके सेट जो कैम्ब्रिज की रिक्वायरमेंट है उस पर डिपेंडेंट है, जो कि वेस एलिवेट आपको प्रोवाइड कर रहा है, जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं. इसी आपको जैसे एट्रीब्यूट्स ऑफ कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज कितनी कंट्रीज में है, कैम्ब्रिज की कौन सी स्ट्रीम्स है, हमने पढ़ा O लेवल्स है, IGCSE है. फिर आप बायोलॉजी पे आ जाएं, बायो के 2 कोड्स कौन से हैं IGCSE के, O लेवल्स के. ये सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए. देन यू कम टू सिलेबस. सिलेबस में क्या क्या प्रोवाइडेड है, कहाँ से उठाना है, पेपर का फॉर्मेट क्या है, ये नॉलेज होनी चाहिए सर मॉस. ठीक है जनाब? सर्टिफिकेट बात की बात है. सर्टिफिकेट भी आपके पास है तो चेरी ऑन टॉप है, आप लें. बिल्कुल मेनी ऑफ द स्कूल्स वो उनका एक माइंड, एक मेंटालिटी होती है कि आर यू अ सर्टिफाइड टीचर. यस, फर्क पड़ता है बिकॉज आप डायरेक्ट कैम्ब्रिज से सीख कर आ रहे होते हैं. बट अगर वो सर्टिफिकेट हाथ में और आपकी नॉलेज, स्किल्स और स्किल सेट आपके पास नहीं है तो फिर वो पॉइंटलेस हो जाता है. राइट Ma'am, I have one question. जी रबिया. Ma'am, you have shown the syllabus of the O levels. Am I right? जी, you can see Okay, that 5090. My question is that I think I don't have so much knowledge about O level, but I think that O level has 3 levels. बिल्कुल, अभी हम पढ़ रहे हैं. एक सिलेबस तो हमने दिखा दिया ना, ये वाला. अभी मैं आपको दिखा रही हूँ जनाब एक और सिलेबस, दैट इज IGCSE का. ठीक है?
My question is आप that, हम्म sorry to interrupt you. My question is हम्म that this syllabus is all for the 3 years. अच्छा, मैं आपको एक और चीज क्लियर करती हूँ. देखिए 3 इयर्स की जब हम बात करते हैं ना, तो ये डिफरेंट स्कूल्स डिफरेंट तरह से उठाते हैं. 3 इयर्स काफी सारे स्कूल्स में कहते हैं ग्रेड 9, ग्रेड 10, ग्रेड 11, राइट. Yes, yes. अब वो क्या करते हैं, ग्रेड 9 में थोड़े टॉपिक्स करा देते हैं, फिर थोड़े 10th में, फिर 11th में, राइट. 11th को वो रखते हैं जनाब ज्यादा रिव्यू, रिविजन और पास्ट Advanced, पेपर्स advanced. भी आप कहते हैं. ये एक तरीका है स्कूल्स का. ये नॉर्मली एक पुराना ट्रेंड था जो कि यूजुअली जो ओ लेवल वाले स्ट्रीम होती है वो बहुत उठाती है, आईजीसीएसई वाले भी उठा लेते हैं, ठीक है. कुछ स्कूल्स क्या करते हैं ये भी समझ लें. आई एम ग्लैड यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन. कैम्ब्रिज का एक सब्जेक्ट है कोऑर्डिनेटेड साइंसेस के नाम से, ठीक है. कोऑर्डिनेटेड साइंसेस क्या है, वो एक लाइक द टर्म इटसेल्फ कोऑर्डिनेट करता है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी को, तीनों को, राइट. अब जब तीनों को उसने कोऑर्डिनेट कर लिया तो एक कलेक्टिव उसने साइंस प्रेजेंट कर दी. ग्रेड 9 का बच्चा काफी सारे स्कूल्स में वो पढ़ता है, और 10th एंड 11th पर उसके पास 2 साल ही बचते हैं टू डू, चाहे ओ लेवल्स या चाहे आईजीसीएसई, ठीक है. तो ये अब स्कूल पे होता है कि वो किस तरह का सिस्टम अडेप्ट करते हैं. अगर तो वो कोऑर्डिनेटेड साइंस पढ़ा रहे हैं, जैसे मैं जिस स्कूल में पढ़ाती हूँ वहाँ 9th में कोऑर्डिनेटेड साइंस होती है, वो ओ लेवल के 3 इयर्स या आईजीसीएसई के 3 इयर्स नहीं होते. रबी, Okay, आपको okay. समझ Now, आए? yes, yes. Now I got. अब कोई और स्कूल है वो कहता है कि जनाब 9 में आप जो है वो 9 से ही सिलेबस उठाना शुरू करें, तो वो 9 से उठाना शुरू करते हैं. गेट इट? It means that तो in coordinated science you have adjusted the different topics of biology with the other ट्रू, subjects. एब्सोल्युटली. केमिस्ट्री भी है Oh, उसमें, फिजिक्स भी है, ठीक है. okay, okay. Now I got it. करेक्ट. तो ये फर्क है. अब आपकी मर्जी, आप जिस स्कूल में जा रही हैं, जहाँ पे आप ने जॉब की है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, आप उस तरह से मूव. कैम्ब्रिज की रिक्वायरमेंट नहीं है. क्लियर? Okay, okay. मॉज, एनी क्वेश्चन? नो मैम. ओके, ठीक है, आगे बढ़े. मैंने अभी आपको दिखाया था सिलेबस जो कि था जनाब हमारा आई नहीं, ओ लेवल्स का दिखाया था ना. अब हम देखते हैं आईजीसीएसई का सिलेबस. डू यू सी द सिलेबस ऑन योर स्क्रीन? Yes, ma'am. क्या? अब ये आईजीसीएसई को हम पढ़ रहे हैं. कंपेयर टू दैट, आईजीसीएसई क्यों मुझे पसंद है, या दुनिया क्यों आईजीसीएसई की तरफ मूव हुई, एक्सेप्ट फॉर 4 कंट्रीज. आईजीसीएसई आपको ये देख रहे हैं, 2 असेसमेंट, कोर असेसमेंट एंड एक्सटेंडेड असेसमेंट. आईजीसीएसई अंडरस्टैंड करता है कि हर बच्चा ए स्टार बच्चा नहीं होता, राइट. और वो इस चीज की रिस्पेक्ट करता है. देखें, कोर वैल्यूज यहाँ पे भी वही रिपीट हो गई, ठीक है. ये आईजीसीएसई का सिलेबस है. थोड़ा सा अगर मैं इसको यहाँ दिखाऊं, टॉपिक्स सेम है. डू यू थोड़ा सा याद है रबिया टॉपिक्स? Yes, अगर ma'am. हम Yes, ma'am. तो मोर और Little लेस bit change. सारे वही, बहुत माइनर, ठीक है. होता क्या है यहाँ पे, अगर आप देखें तो 2 चीजें हैं. वन इज कोर, द अदर इज एक्सटेंडेड. और ये बड़ी खूबसूरत चीज है. आईजीसीएसई कहता है कि जनाब सारा बच्चा जो है, आई मीन डिफरेंशिएटेड लर्निंग भी होती है ना. कोई हमारे पास एडीएचडी आ जाता है, कोई और कोई स्पेशली एबल्ड बच्चा होता है, या किसी को कोई मेडिकल इश्यूज होते हैं, वो नहीं पढ़ सकता इतनी डेप्थ में, ठीक है, क्रिटिकल Agree. एनालिसिस नहीं कर सकता, तो उसका Agreed. I have सिलेबस experience. है ना. तो उसको रिस्पेक्टफुली कैम्ब्रिज ने क्या किया है, उनके लिए कोर्स सिलेबस इंट्रोड्यूस किया है. अब कोर्स सिलेबस को देखें, यहाँ पे कंटेंट में अगर दिखाती हूँ, आप देख रहे हैं कोर एंड सप्लीमेंट. This part is for those students, whereas supplement is for the ones who are taking higher level वाला, यानी extended course, ठीक है. अच्छा, हमारे पास भी ऐसा है, और बॉडीज कैम्ब्रिज के अलावा और बॉडीज AQA आ गई, आपकी OCR आ गई, उसके अंदर भी फाउंडेशन ईयर एंड हायर टीयर, ये सारा इस तरह से देते हैं, फाउंडेशन टीयर एंड हायर टीयर, ठीक है. अब ये देखो, कोर में है स्टेट, डिस्क्राइब, कंस्ट्रक्ट, बड़ा सिंपल सा है. बट अगर आप सप्लीमेंट में आ जाओ तो एक्सप्लेन, डिटेल्स मांगता है फिर, और थोड़ा सा
क्वेश्चंस भी जरा क्रिटिकल एनालिसिस की तरफ आ जाते हैं. गॉट इट? Yes. ओके. अच्छा, सप्लीमेंट क्या करता है, आपकी ग्रेडिंग जो है ना वो बड़ी डिटेल्ड, आई मीन ए स्टार तक आ जाता है. कोर डेफिनेटली क्योंकि थोड़ा इजी होता है, तो इसके अंदर हाईएस्ट ग्रेड जो एक बच्चा वो ले सकता है वो ग्रेड सी ले सकता है. राइट? एनी क्वेश्चंस? No, ma'am. Sir Moise, नो मैम. do we have somebody with us? Let me just check. जी जनाब. ओके. नाउ पेपर की वेटेज की बात करते हैं तो बोथ इन IGCSE एंड ओ लेवल्स पेपर का वेटेज क्या है? 100% टोटल होनी चाहिए. राइट? 3 चीजें कैम्ब्रिज टेस्ट करता है एंड वी आर गोइंग इनटू मच डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट. ज्यादा बोरिंग लगे तो बता देना, काम आ रहा है तो भी बताना. रबिया हेल्प हो रही है थोड़ी? Yes, ma'am. सर मोइज? यस मैम. ओके. आपको ये पेज नजर आ रहा होगा, असेसमेंट ऑब्जेक्टिव. राइट? Yes. AO1 बड़ी सिंपल सी चीज है. नॉलेज जो हमारा जो मेट्रिक सिस्टम है ना वो यहीं पे अटका हुआ है अभी तक, AO1 पे. कैम्ब्रिज कहता है कि जनाब उसके बाद बहुत सारी चीजें, आप निकलो बाहर. हम क्या कहते हैं? डिफाइन, एक्सप्लेन, यू नो, व्हाट इज दिस, स्टेट. हम यहीं पे खत्म हो जाते हैं डिफाइन एंड एक्सप्लेन में. यानी जो पेपर थ्योरी है वही आपको पेपर में डालनी है. ठीक है? दैट इज कॉल्ड नॉलेज. AO1 के क्वेश्चन जो होते हैं वो कैम्ब्रिज कहता है रखो, नॉलेज बेस रखो, बट उसके बाद यू शुड इक्विप योर स्टूडेंट्स हैंडलिंग इंफॉर्मेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. ठीक है? हैंडलिंग इंफॉर्मेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है? बेस्ड ऑन दीज नॉलेजेबल क्वेश्चंस, जो थ्योरी आपने लर्न की, इसको आप किस तरह से अप्लाई करोगे इन प्रॉब्लम सॉल्विंग. गॉट इट? दैट इज आपके क्वेश्चन पेपर का बहुत सारा हिस्सा इस पे डिपेंडेंट है. अब देखिए यहाँ पे क्या बात आती है एज अ टीचर. लेट्स कम टू द टीचिंग पॉइंट नाउ. द अंडरस्टैंडिंग ऑफ थ्योरी इज नॉट सफिशिएंट फॉर अस. जिस तरह हम मेट्रिक सिस्टम में पढ़ के बता देते हैं, दैट्स इट. इवन आई हैव सीन किड्स कमिंग फ्रॉम मेट्रिक सिस्टम, वो ब्रैकेट्स में आंसर मार्क कर रहे होते हैं. यू सी, ये सारी चीजें नहीं होनी है. यहाँ से यहाँ तक लिखे हैं, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में यहाँ से यहाँ तक लिखे, ये नहीं चलेगा. जो नॉलेज आपने पढ़ी है उसको किस तरह अप्लाई करोगे, लोकेट, मैनिपुलेट न्यूमेरिकल एंड अदर डाटा. आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस हैं उससे क्वेश्चन कर लेंगे, पॉपुलेशन पे उससे क्वेश्चन कर लेंगे, डिजीजेस पे, पैटर्न एंड रिलेशनशिप. अगर लेट्स सपोज डाइजेस्टिव सिस्टम में ये इशू आ रहा है तो लिवर में क्या प्रॉब्लम हो सकता है. डू यू गेट इट? इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं. डाटा बनाए, ये एक्सपेरिमेंट क्यों सही हो रहा है, क्यों गलत हो रहा है, क्या चीज़ इसमें करेक्ट मजीद हो सकती है. आपके बच्चे को हर एंगल से अपने काम को उसको पता होना चाहिए कि वो जो कर रहा है वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, और जो है अगर ये गलत हो गया तो ये कैसे सही होगा. ठीक है? ये सारी चीजें कैम्ब्रिज जो है वो कहता है कि आपके बच्चे को पता होना चाहिए. डेफिनेटली दैट मीन्स यू एज टीचर्स शुड ऑल्सो बी knowing all this. और कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है. when you start studying the technicalities, the requirements of Cambridge, आप खुद ही year by year, slowly and gradually, and of course with programs like Ways Elevate, आप लोग जो है वो बिल्कुल pro हो जाते हो. Then of course bio है. मैम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इंक्लूड होती है. हाँ देखिए सर, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी नहीं, ब्लूम्स तो बहुत पुरानी हो गई, अब तो बहुत सारी टेक्सोनॉमीज आ गई हैं. ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का भी टॉप मोस्ट लेवल, अब आपको पता है ना, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी भी चेंज होकर ऊपर वाला लेवल क्रिएट का आ गया है. तो यस, हाँ, हम उसको कभी भी अंडर वैल्यू नहीं करेंगे. ब्लूम्स टेक्सोनॉमी हर लेवल पे, हर एजुकेशन फील्ड में अप्लाई होनी चाहिए. ठीक है? तो इसमें भी होती है. बट रबिया, आई लाइक योर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि हाँ, उसके बगैर अगर आप कैम्ब्रिज में जंप इन करना चाह रहे हो तो पॉसिबिलिटी नहीं होगी. आपकी लर्निंग नहीं होगी, और आपकी लर्निंग नहीं होगी तो बच्चों की भी नहीं होगी. तो यस, टेक इट अप. Actually, ma'am, whenever I take the assessment of the students, I use that taxonomy and I make the questions according with critical thinking, not the only understanding.
I always add the critical thinking questions. लवली. अच्छा रबिया, क्योंकि आप ऐसा कर रहे हो तो ये वन टेक अवे फॉर यू, ठीक है. आपका देखो 3 चीजें मैं आज यहाँ से गिफ्ट लेके चले जाओ. डेमो सेशन में ये नहीं देते बट जस्ट टेक इट. आपका पेपर जो है ना वो 3 लेवल्स पे बेस होना चाहिए. नॉलेज विद अंडरस्टैंडिंग, हैंडलिंग इंफॉर्मेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एक्सपेरिमेंटल स्किल्स. आपको कैसे पता लगेगा? आपने तीनों टाइप के क्वेश्चंस दिए हैं. आपका नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग होगा तो उसके अंदर आपके कीवर्ड्स क्या क्या आएंगे ये देख लें. डिफाइन आ गया, ठीक है. एक्सप्लेन नहीं आ गया, सिंबल पूछ लिए, थ्योरीज पूछ ली, फैक्ट्स पूछ लिए, फिनोमिना पूछ लिया. दिस पार्ट, ठीक है. बट इसका कंटेंट जो है वो सबसे कम होगा, ठीक है. देन आपके कुछ क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पे वे यू आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज, ठीक है. प्रेजेंट इंफॉर्मेशन, जैसे आपने बच्चों को कहा ये एक्सपेरिमेंट हुआ है, आप इसका टेबल बना के बताओ. टेबल में किस तरह से करोगे? या ये एक्सपेरिमेंट हुआ है, प्रिडिक्ट से आपका कीवर्ड प्रिडिक्ट से स्टार्ट होगा. व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, ठीक है. कोई क्वेश्चन आपने दे दिया और आपने कहा कि ये क्यों हो रहा है. लेट्स सपोज ए कांस्टेंट राइज आ रहा है स्मोकिंग केसेस में. फाइन, आपने ग्राफ के थ्रू बता दिया एंड यू आर आस्किंग स्टूडेंट्स देखो क्या हो रहा है 2020 से लेकर 2026 तक क्या हुआ. ग्राफ नीचे आ गया तो व्हाई डू यू थिंक दिस हैज हैपेंड. यू सी, दैट इज कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड हैंडलिंग इंफॉर्मेशन. तो Yes, I got आपका it. पेपर के अंदर ये वाली चीजें होनी चाहिए, ठीक है. उसके बाद आप आते हो तो थर्ड पार्ट जो कि आपके पेपर को कंप्लीट करेगा वो है एक्सपेरिमेंटल स्किल्स एंड इन्वेस्टिगेशंस, रिकॉर्डिंग, ऑब्जर्वेशन, ठीक है. मेकिंग मेजरमेंट्स, आपने बीकर बना दिया, उसकी वैल्यू रीड करने को बोल दी, ठीक है. पोटैटो का साइज हो गया, वो बड़ा क्यों हुआ, कम क्यों हुआ, कलर चेंज क्यों हुआ, पीएच की वैल्यूज बता दी. डू यू गेट इट? सो एक्सपेरिमेंटल स्किल्स आने लग गई उसके अंदर. तो आपका एक हेल्दी पेपर वो पेपर होगा जिसके अंदर एक सर्टेन वेटेज ऑफ AO1, AO2 और AO3 तीनों होगा. अच्छा, सिर्फ पेपर बनाना ही नहीं, व्हेन यू आर टीचिंग योर स्टूडेंट्स तो योर टीचिंग स्ट्रैटेजीज शुड बी अलाइंड इन अ वे कि बच्चा जो है वो सिर्फ पेपर में क्वेश्चन ही के वक्त ये ना कर रहा हो, बट द स्टूडेंट्स शुड बी given or made to learn a certain topic through all these 3 aims and objectives. यानी अ टीचर जो कन्वे करेगी, कम्युनिकेट करेगी, उसको पता होना चाहिए हम कहाँ करते हैं. हम सिर्फ नॉलेज तक बताते हैं ना, isn't it? I mean, let's be very honest. हम क्या करते हैं? एक जनरल क्लास उठा लें, ये टॉपिक है, हार्ट ऐसे काम करता है, दैट्स इट. हमारे आगे के लेसन्स के अंदर ये चीजें इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए, ठीक है. एक ला के पेशेंट बिठा दें सामने एंड टेल देम कि ये पेशेंट है और इसकी रिपोर्ट्स में आई हैं कि इसके हार्ट के अंदर होल है, the kid cannot run fast. What do you think is the problem? अब क्या आ गया आपने, आप क्लास के अंदर करा रहे हो हैंडलिंग इंफॉर्मेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. नाउ किड्स आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन. टेस्ट में क्या आया? अच्छा, होल है, कहाँ पे है? सेप्टम में है. सेप्टम में होल है तो इसका मतलब ब्लड जो है राइट एंड लेफ्ट साइड का जो है वो मिक्स हो रहा है. दैट मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज मिक्सिंग विद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. गेटिंग मी? सो Rabia, is it making sense? Yes, I got it, ma'am. है ना. तो आप इस तरह से बच्चों को बायो पढ़ाओगे. बायो सिर्फ थियोरेटिकली पढ़ा दिया और बच्चे को एक्सपेक्ट किया कि वो सब उसको वो कर लेगा, तो इस कैम्ब्रिज टीचर इज नॉट मेंट टू जस्ट डिलीवर एंड टीच बुक नॉलेज. प्रॉब्लम सॉल्विंग टीचर देगा, बुक नहीं देगी. बुक कंटेंट आपको दे देगी, बुक को किस तरह से यूज करना है दैट इज ऑल ऑन ए कैम्ब्रिज learner. That is, you as a teacher. ठीक है. Again, I have a question. जी पूछिए. I love you for that. My question is that obviously we are the teachers and we have a great knowledge about the bio, but for the handling there is some site or any program that can help us to create that handling process for us, कि हमें आसानी हो कि वहां से हम चीज लें और हमें आइडियाज मिले. अच्छा, सोचो मैंने क्या बताया था शुरू में.
कैम्ब्रिज क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है आपको? books, एंड resources, ये पढ़ो. team of work. यस, टीचर्स गाइड हैं, रिसोर्सेज हैं, और हर साल रबिया आप एक रिफाइंड टीचर होगे. इस कॉन्फिडेंस के साथ एंटर करना कि हर साल, जो हमने शुरू में बात की थी ना, कि वंस अ टीचर ऑलवेज अ टीचर तो है, बट ऑलवेज अ लर्नर भी है, इजंट इट? Yes, हर yes. साल आप रिफाइन होते. मैं यहाँ इसलिए नहीं हूँ कि मैं कोई कैम्ब्रिज में तुर्रम खान थी और मैं अचानक से आ गई. नो, आई वॉज एज रॉ एज यू ऑल आर. But here I am Yes. as a trainer. I've trained many teachers. मेरे lectures जो हैं, shouldn't be calling them lectures, yeah, but मेरे lessons चलते हैं in different schools. ठीक है, तो ये क्यों है? ये इसीलिए है क्योंकि consistency is the key. Give up नहीं Exactly. करना, Yes. सीखना है. हर फेलियर Yes. जो है वो आपका लर्निंग टूल है. और कैम्ब्रिज खड़ा हुआ है आपके बीच, आपको स्कीम ऑफ वर्क भी दे रहा है, आपको स्पेसिमेन क्वेश्चन भी दे रहा है, आप टीचर्स गाइड भी दे रहा है. और क्या चाहिए? और फिर हम बैठे हुए, वे सेलिब्रेट बैठा हुआ है ना? Okay, okay, okay. तो I got it. हो जाएगा. या Yes, inshallah, inshallah. इंशाअल्लाह ताला नियत साफ होगी तो हमारी मंजिल आसान होगी. देखिए, वे सुफियान साहब कहते हैं कि अंडर कमिटमेंट एंड ओवर डिलीवर. हम कमिट कम करें, डिलीवर उससे ज़्यादा करें. एंड कोशिश मेरी यही रही कि उसको जस्टिफाई करूं. डेमो के अंदर ये सारी चीज़ें बताने का मकसद भी यही है. ठीक है, ये डिफरेंट पेपर्स होते हैं हमारे. बच्चा कोर उठाएगा तो कोर वाला जो ब्रैकेट में दिया हुआ है, 3 पेपर्स होते हैं. वन इज़ मल्टीपल चॉइस, दूसरा थ्योरी होता है, और थर्ड पेपर आपका ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल, यू सी पेपर 6. ये होते हैं. अब यही 3 पेपर्स आपका ओ लेवल भी करा रहा है, यही 3 पेपर्स आपका जो है वो IGCSE भी करा रहा है. ठीक है, यहाँ पे आपको सारे कंटेंट पॉइंट दिए हुए होते हैं. ये हमारा पेपर 0610 का है. किसका कोड है रबिया 0610? 0610 IGCSE का वेरी है. गुड, और वेरी गुड. और ओ लेवल्स का कौन सा है सर मोइज? मॉज I think 0510 वो किस दूसरा सिलेबस किसका है हमारे पास? एक स्ट्रीम तो IGCSE की है, दूसरी किसकी है? O level ओ लेवल 5090, राइट? 509. एनी अदर क्वेश्चन? हाँ जी, ठीक है. एनी अदर क्वेश्चन? no ma'am. एनीवन? कुछ सवालात पूछें तो मुझे पता लगे कि हमने जो समझा वो आपको समझ आया. I have asked so many questions. Thank you for that. Sir Moaz, आज have you learned something? Is there any takeaway for you? क्या सीखा आपने? कोई 3 बातें. मैम सिलेबस वगैरह के बारे में पता चला है, और क्वालिटीज जो होनी चाहिए GSC टीचर में वो पता चली है. असेसमेंट्स कैसे होती हैं वो पता चली है. वेरी गुड. ये भी पता चला है कि सिर्फ थ्योरी जरूरी नहीं है, इसके लिए आप वो हायर लेवल्स भी आने चाहिए, एक्सपेरिमेंटल स्किल्स आनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन आनी चाहिए. डरा तो नहीं दिया मैंने आपको सर मोaz एंड मिस रबिया? No ma'am. हम सब एक हैं, एक जैसे हैं. कैम्ब्रिज एक टीचिंग बॉडी है. हमारी मेहनत हमें वहाँ लेके जाएगी, और आपकी एफर्ट्स को चैनलाइज करने के लिए यहाँ पे बेस एलिवेट बैठा हुआ है. एंड इंशाल्लाह जब नियत साफ होगी तो हमारी मंजिल भी Thank you, ma'am. आसान होगी. कोशिश यही थी. अल्लाह ताला जो है वो हमारी कोशिशों में बरकत दे और Ameen, उसे पाए ameen. तकमील पर तक पहुंचाए. रबिया, व्हाट इज Inshallah. योर टेक अवे? My opinion about this demo class is that I have got so many new things, because I was very confused because मैंने आपसे कहा ना कि मेरी जो अपनी studies हैं वो तो metric system से, but still I am taking the primary classes in Cambridge. तो मुझे अभी O levels वाला system का इतना differentiation नहीं पता था. मेरा वो concept clear हुआ है.
सेकंड थोड़ा बहुत lovely. ऑब्वियसली मैं प्राइमरी ले रही हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत ये टेक्सोनॉमी और ये असेसमेंट हैंडलिंग ये मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था, बट वो थोड़ा सा डिटेल में और अंदाजा हुआ है। प्लस सिलेबस, आई गॉट टू नो कि व्हाट इज सिलेबस एंड हाउ डू वी टीच देम। तो वो चीजें जो मेरी मतलब मेरे दिमाग में जो थे चीजें वो क्लियर आउट हुए हैं। That is great. That is great. So, demo productive रहा आपके लिए फिर, रबिया? Yes, definitely 100% for me. Oh, wow. That's a big wow for me. and and Alhamdulillah. and I must appreciate you कि आपका बहुत अच्छा टीचिंग स्टाइल है कि मुझे मतलब बात समटाइम्स आपके टीचर ऐसे होते हैं कि आप थोड़ा हेजिटेट करते हो बात करते हुए आप बात, बट आई एम वेरी वेरी कंफर्टेबल विथ यू। Rabia, I am you and you are myself. You are me. Thank you, Sir Moaz. बिल्कुल ऐसा ही है. I mean, हम सब क्या हैं? हम सब टीचर हैं. हमारा मकसद यहाँ इल्म देना है और सीखना है. मिलके सीखेंगे तो ही बात बनेगी, है ना? Agreed, agreed. है ना? तो एनी टाइम इट वाज, कभी कोई क्वेश्चन हो यू कैन आस्क. आप मेरा नंबर ले लें वेस से, दे विल गिव यू माय नंबर. कुछ पूछना हो तो आप So पूछें. lovely. और thank you for this class. Thank you for making it interactive. Sir Moaz, बहुत बहुत शुक्रिया. रबिया, बहुत बहुत शुक्रिया. Great to have you and see you inshallah. Ma'am, I also say thank you to you. I also want to say thank you to you. Thank you. My Thank you very pleasure. much, My ma'am. pleasure. बहुत बहुत शुक्रिया Sir Moaz. With that, we are calling off the class. Take care. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz.